Yeah. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Okay. So let's start for today's session. Once again, we are going to see some more important ratios, which are very important for analyzing any stock or which are very important part of fundamental analysis. Fine. So yesterday we have seen two, that is the EPS and PE. Fine. EPS means earning per share, PE means price to earning value. Getting it? So we have seen how to use them, how to just compare the stocks depending on their PE and all. Fine. But one more important thing, while using these particular ratios now, and if you are comparing the different industries, just compare with similar domain or compare with the similar sector. Okay, means if you are taking let's suppose TCS, and if you are taking ICICI Bank, then don't do like that. Getting it? Okay, because TCS belong to the IT sector, and this ICICI belong to the bank sector. Okay, so normally if you want to compare, just compare with like industry, or you may say the industries from the same sector. Getting it? Okay, because sometimes that ratio may be different for different industries, that because of their business pattern and all. Okay, then we will see, don't worry. Fine. So we have seen two ratios, EPS and P. Now today we will see CAGR, and if time permits, then we will see ROCE and ROE. Getting? So I will not go in a detail how to calculate these particular ratios, what are the formulas, what balance sheet you have to check and all, because that is absolutely not needed. Getting? So that all that values are ready-made available on the website. So I will not go in detail ki kaise calculate karte, kya minus karna hai, kya plus karna and all, because that is not our interest. Okay, we will just see how to analyze this particular number. If you are getting this particular ratio, then how to analyze it and how to use it for selecting a best stock, that we will see. Fine. So we will see first one, that is a CAGR. That is what compound annual growth rate. That is what compound annual growth rate. Now, why do we require this one? If you want इसके लिए भी formula, if I just tell you, it just goes like this one. Future value divided by present value raised to 1 by n minus 1. ठीक है, तो फिलहाल ये formulas में नहीं जाएंगे. ठीक है, we will just see how to interpret this particular number which we are having on different websites. Getting? So once again, CAGR means what? Is a compound annual growth rate. Compound annual growth rate. ठीक है, अब इसका if I just make it simple, if I just make it in simple terms, एक ऐसा let's suppose कि कुछ तो ABC कंपनी है, कुछ तो ABC कंपनी है. ठीक है, now what I'm doing is that I'm just taking ABC कंपनी का record for each and every financial years. let's suppose 4-5 financial year के मैंने record लिए. ठीक है, ठीक है, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज दैट कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रिटर्न दिया उसने, मींस मैंने जितना भी पैसा डाला है उसके ऊपर कितना रिटर्न दिया, दैट आई वांट टू कैलकुलेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग इज दैट सिंपल. वंस अगेन, मैंने एक कंपनी लिया जिसमें मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और जो भी, ठीक है, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड, मतलब हर एक साल, लेट्स सपोज जो भी फाइनेंशियल ईयर है, लेट्स सपोज इफ आई स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 टू 18, देन 18 टू 19, देन 19 टू 20, 20 टू 21 एंड लाइकवाइज. ठीक है, ठीक है, दिस आर द फाइनेंशियल ईयर्स. आई होप दैट एवरीवन अंडरस्टैंड फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल मतलब कहां से चालू होता है फाइनेंशियल ईयर? Financial year start from where? March. Yeah, 1st April to 30 March. Getting it? This is that, मतलब इसको financial year बोलते हैं. I hope that everyone understand. Getting? ठीक है? So now let's suppose these are the financial year का statement. And I just want to know कि means कितना रिटर्न दिया, मतलब अगर मैंने कुछ पैसा डाला, अगर मैंने 1 लाख डाला है तो 1 लाख के ऊपर कितना पैसा, मतलब कितना रिटर्न दिया उन्होंने. ठीक है, तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दैट दे जस्ट गिव दिस पर्टिकुलर मतलब ईयर वाइज. नॉर्मली ये जो नंबर रहता है वो ईयर वाइज रहता है. एनुअल रिटर्न कितना आया, एनुअल रिटर्न. ठीक है, तो लेट्स सपोज 2017-18 में उसने 10% दिया, 2018-19 में लेट्स सपोज 20% दिया, 19-20 में लेट्स सपोज खराब हुआ था, कोविड वगैरह आया था, तो फिर लेट्स सपोज माइनस में गया, अभी मतलब जो भी पैसा तो डूबा, लेट्स सपोज -8% गया. ठीक है, बाद में अभी फिर से थोड़ा सा अच्छा है, लेट्स सपोज 25% वगैरह आ गया. आर यू गेटिंग इट? सो दिस आर द नंबर व्हिच आर अवेलेबल टू, मतलब हर एक फाइनेंशियल ईयर में कितना ग्रो किया. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इज दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू चेक ऑल द फाइनेंशियल का रेशियो, ऑल द फाइनेंशियल का रिटर्न्स, एंड टू जस्ट डिसाइड कि वेदर कंपनी गुड है कि नहीं है. गेटिंग इट? ठीक है, बिकॉज मतलब एवरी टाइम यार, अरे हाँ इधर 10% दिया, इधर अच्छा दिया था, अभी इधर खराब किया तो मतलब इसको निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है. आई गेट समटाइम्स इट में हैपन, जैसे अपन देखा मतलब कोरोना के टाइम पे सभी कंपनीज का रिटर्न्स वगैरह सब डाउन गया था. आई गेट इट? ठीक है, सो इट डजंट मीन कि वो कंपनी बुरी है. Are you getting it? ठीक है, सो दैट्स व्हाई क्या करते हैं, एक टर्म आया विच इज कॉल्ड सीएजीआर. अब सीएजीआर क्या होता है, यू मे जस्ट मतलब से कि इनको एक रिप्रेजेंटेटिव करने वाला एक टर्म रहता है, मतलब नाउ दिस इज फॉर ईच एंड एवरी ईयर ना. अब मैं बोलूंगा यार मुझे हर एक ईयर का मत पता, मेरे को समझता नहीं है. ठीक है, मुझे जैसे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब जैसे एक एवरेज दे.
सो दैट मतलब आई विल जस्ट कम टू नो कि हाँ कि बाबा हर साल में इतना रिटर्न दे रही है कंपनी। आई गेट, ठीक है। आई डोंट वांट कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में उसने कितना दिया, मुझे वो नहीं चाहिए, बिकॉज वो हर एक ट्रैक रिकॉर्ड में चेक नहीं करते बैठेगा, ठीक है। दिस फॉर द 5 इयर्स, यू मे हैव दैट फॉर द 10 इयर्स 20 इयर्स, उतना सब मुझे चेक नहीं करना है, ठीक है, उतना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। सो इन दैट केस आई विल आस्क फॉर सीएजीआर, ठीक है। अब ये सीएजीआर क्या रहता है कि वो जस्ट मतलब वी कैन से इज जस्ट एवरेज वैल्यू, कि मतलब एवरेज 5 इयर्स में कितना दिया, तो अब इसका एवरेज निकालेंगे एंड दैट वैल्यू लेट्स सपोज इट कम्स टर्न्स आउट टू बी लेट्स सपोज 15%। सो अभी से कि हाँ हर एक ईयर में मेरा पैसा 15% से बढ़ रहा है, Are you getting it? हर एक ईयर में मेरा पैसा 15% से बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सीएजीआर इज, एंड सीएजीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर सिलेक्टिंग एनी स्टॉक। मतलब कितना रिटर्न दे रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ना बाबा, कितना रिटर्न दिया उसने लास्ट 10 सालों में, लास्ट 3 सालों में, लास्ट 5 सालों में, जितना भी दैट वी विल सी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, मतलब सीएजीआर कितना है, कंपनी ने रिटर्न कितना दिया, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल इन्वेस्ट, बिकॉज अपना टारगेट 17% का है, वो तो आना ही चाहिए, ठीक है। अपना टारगेट जो अपने सेट किया स्टार्टिंग लेक्चर्स में 17% है, उसको तो अपना अचीव करना ही करना है, ठीक है, ठीक है। तो सीएजीआर वंस अगेन इज अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड है, मतलब 4-5 साल का कंपाउंड करके देखिएगा एवरेज करके बाबा कितना ग्रो कर रहा है, कितना मेरा पैसा ग्रो कर रहा है, दैट इज व्हाट इज सीएजीआर इज। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, एनी डाउट रिगार्डिंग सीएजीआर? समझे? आई एम नॉट गोइंग इन फॉर्मूला, मुझे जस्ट चाहिए इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा उसका, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। एनी डाउट? हाँ बोल। सर वो 15% लास्ट में वो एवरेज है ना, पहले के क्या 4 साल का। क्या 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 क्या? मतलब वो हाँ 15% 15% एवरेज, हाँ मतलब वो जितने भी साल रहेंगे नॉर्मल जितने भी साल एवरेज का मैं था। सीएजीआर ले रहा हूँ, ठीक है। सीएजीआर रेट में भी 5 इयर्स 10 इयर्स 3 इयर्स ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रहते हैं। इफ आई सेइंग 10 इयर्स तो 10 इयर्स का वो क्या बोलते हैं एवरेज लेके बताएगा, गेटिंग इट? अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। सो नो ये बोर्ड नहीं चाहिए मुझे, या सो लेट्स सपोज आई विल जस्ट गो ऑन screener.com, I will open my setup, I will go simply to this one only. So this is the screener.com, और you may just go to the ticker वगैरह, उस पे ये सब ratios वगैरह अवेलेबल रहते हैं, but I like this one screener. Okay, I will log in. लॉगिन नहीं किया तो भी चलता है, बट लॉगिन किया तो पूरा कंपनी के डिटेल्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब कुछ बोर्ड मीटिंग वगैरह हुआ कि वगैरह हो गया, ठीक है। तो लेट्स सपोज नाउ आई विल जस्ट टेक टीसीएस, ठीक है। नाउ द सीएजीआर एंड ऑल दे आर एट बॉटम, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दिस इज सीएजीआर, स्टॉक प्राइस सीएजीआर, मतलब स्टॉक प्राइस कितना बड़ा, आई गेटिंग इट, ठीक है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, नाउ दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मतलब 10 इयर्स में, मतलब इफ आई जस्ट इन्वेस्ट इन लेट्स सपोज टीसीएस, मतलब अगर टीसीएस की बात की, मतलब इफ आई जस्ट टेक इट फॉर द 10 इयर्स, तो हर एक ईयर में उसने 22% रिटर्न दिया, समझो। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 17%, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी फेक और आई एम नॉट गिविंग एनी एग्जैगरेटेड वैल्यूज वगैरह, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग एवरीथिंग व्हिच इज द ट्रुथ, व्हिच इज द पॉसिबल, ठीक है। सो इफ आई जस्ट इन्वेस्ट इन अ टीसीएस ओनली, तो टीसीएस का 10 इयर्स का सीएजीआर देख 22% है, ठीक है। 5 इयर्स का देख 27% है, 3 ईयर का 23 एंड 1 ईयर का 66 है। Are you getting it? ठीक है। So 10 years मतलब if I just invested my money in let's suppose TCS let's suppose 10 years आएगा, तो हर एक ईयर में 22% से बढ़ेगा मेरा पैसा, समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर लास्ट 5 ईयर में अगर मतलब वो 27 है, तो फिर मतलब लास्ट 5 ईयर में 27% से बढ़ा है, ठीक है। सो नॉर्मली मतलब what I see is that normally ये जो नंबर्स है ना, मतलब if I arrange it like 10 years 5 years 3 years and 1 year, तो ये नंबर ना थोड़ा बढ़ेगा ना तो अच्छा रहता है। इफ दिस नंबर इज ग्रोइंग, ठीक है, मतलब यू कैन सी 10 इयर्स के लिए 22 है, 5 इयर्स के लिए 27 है, 3 इयर्स के लिए चल एक थोड़ा कम हो गया, बट 1 ईयर के लिए 66 है। इफ दिस नंबर इज ग्रोइंग मतलब व्हाट, अगर ये नंबर ग्रो कर रहा है मतलब व्हाट? सर हर एक साल रिटर्न्स बढ़ रहे हैं। हाँ हर एक साल रिटर्न, बिकॉज अभी ये 10 इयर्स का था ना, ठीक है, मतलब लास्ट 10 ईयर का एवरेज किया तब 22 आया, ठीक है, जिसमें ये भी इंक्लूडेड है 5 3 एंड 1 ईयर, ये भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। इफ आई से 5 इयर्स मतलब हाँ लास्ट 5 ईयर में मतलब कंपनी ने एक्चुअली अच्छा किया है, ठीक है। उसके पहले 5 इयर्स मतलब ये जो 10 इयर्स को इफ आई जस्ट डिवाइड इन 5 इयर्स, तो पहले जो 5 इयर्स थे मतलब प्रीवियस 5 इयर्स, मतलब पहला वाला 5 इयर्स, उसमें थोड़ा रिटर्न कम रहेगा, बट नेक्स्ट 5 इयर्स में ज्यादा है, तो उसको एवरेज करके 22% आया, ठीक है। मींस व्हाट, इफ दिस रेशियो इज थोड़ा सा इंक्रीजिंग ना, तो फिर मतलब वो कंपनी मस्त कर रही है, कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है। Are you getting it? ठीक है। सो नॉर्मली ये नंबर इंक्रीज होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट मतलब you have to this CAGR कितना रिटर्न, एंड you have to check for this 5 and 10 years, not for only 1 and 3 years, because 1 and 3 years में मतलब कंपनी मतलब कुछ भी कर सकती है, मतलब हाँ ऐसे भी हो सकता है कि डबल किया होगा तो इधर 100% दिखेगा, तो फटक से इन्वेस्ट नहीं करने का, you have to see that consistency because that's why this 10 years matters,
10 ईयर का नंबर मैटर, ठीक है। एंड ये नंबर, ये जो भी 10 ईयर का नंबर है, ये 10% से नीचे होना ही नहीं चाहिए, तो उस स्टॉक में जाने का ही नहीं है अपने को। Are you getting it? 10% से नीचे होना ही नहीं चाहिए। Are you getting it? So this is what that stock price CAGR, मतलब कितने से बढ़ रहा है। Now this is that CAGR I'm talking about, stock price का CAGR, मतलब स्टॉक का प्राइस कितने से बढ़ रहा है every year, so that मतलब मेरा भी पैसा बढ़ेगा, because I'm just investing in stock, stock का जो भी मतलब recent price है उसमें। Getting it? ठीक है। Now just talk regarding another company, बोलो कौन सा कंपनी लूं? Just tell me the any company का name which you want to analyze. सर I हिंदाल्को। hope you have started analyzing the companies. Yes, बोलो। हिंदाल्को। अच्छा, हिंदाल्को, हिंदाल्को का रिटर्न कम रहेगा, बट उसका एक्चुअली डिविडेंड बहुत ज्यादा है। नहीं, रिटर्न भी अभी ज्यादा है फिलहाल, तो बहुत बड़ा है। या इफ यू सी स्टॉक का सीएजीआर 10 इयर्स में 12% ही है एवरेज। हाँ, 5 इयर्स में 24, मतलब थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा है। हाँ, बट एज आई टोल्ड, मतलब 10% के नीचे जाने का ही नहीं, तो इधर 12% देना ठीक है, मतलब यू कैन थिंक ऑफ दिस वन, चलेगा। आई गेट इट। हाँ, अभी लास्ट 1 ईयर में ये बोलते हैं कि मतलब 150% किया। 150 मतलब क्या, जो भी स्टॉक का प्राइस है वो डबल से भी ज्यादा होगा। लेट्स चेक हुआ है क्या ऐसे। लास्ट 1 ईयर मतलब ये अगस्त 2020 है, मतलब मैं आई हैव टू सी दैट। लेट्स सपोज मैं इसको मैक्सिमम नहीं करता, बट 3 इयर्स का देखता हूँ। लेट्स सी एक्चुअल में 150% है क्या, ठीक है। इफ नाउ दिस इज द अगस्त, सॉरी सितंबर 21, सो आई विल चेक फॉर सितंबर 20, जून, किधर है ये, जुलाई या नवंबर है, या लिटरली, ठीक है। तो इफ आई जस्ट टॉक रिगार्डिंग दिस वन, सितंबर का 25 को, यू कैन सी दैट ऊपर इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। सो सितंबर 25 को उसका प्राइस 162 था, एंड अभी इसका प्राइस 469 है, मतलब लिटरली, मतलब डबल से भी ज्यादा किया है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हियर वी आर गेटिंग दैट 150%। आर यू गेटिंग इट? इधर गया हो अबे, हाँ, व्हाट हैपेंड? जस्ट अ मिनट, अभी तो रेशियो थे, किधर गए? ओके, लिटिल बit, आई विल जस्ट रिफ्रेश इट। Yeah, here, ठीक है। So that's why you are getting here that 150%, getting it, ठीक है। So this is what, मतलब कितना रिटर्न दिया, this is what you have to look for, ठीक है। एंड नॉर्मली गो फॉर थोड़ा ज्यादा इयर्स के लिए, बिकॉज कंपनी कंसिस्टेंस है कि नहीं वो भी चेक करना है, कंसिस्टेंस होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं 2 साल में दिया बाद में डूब गई, ठीक है। लेट्स सपोज इफ आई चेक रिगार्डिंग दिस वन, लेट्स सपोज यस बैंक, अब इसका देख, या इधर तो निगेटिव है, मतलब जो भी पैसा उसमें वो घटाया उसने। आर यू गेटिंग? तो ऐसे कंपनी के लिए जाने का नहीं, एज आई टोल्ड, मतलब ये एक बेंचमार्क रखने का कि 10 जो भी सीएजीआर है एटलीस्ट 10% के ऊपर होना ही चाहिए, ठीक है। बिकॉज अपना टारगेट 17% है बॉस। आर यू गेटिंग? 10 मतलब इफ यू वांट, यू मे जस्ट कीप इट 20% आल्सो, 20% के नीचे रहेगा तो जाने का भी नहीं। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सीएजीआर। इफ आई जस्ट टॉक रिगार्डिंग एस बैंक, इसने पैसा घटाया है, इसमें डालने का भी नहीं। आर यू गेटिंग? मतलब तेरा जो भी पैसा उससे मतलब बढ़ना तो छोड़, कमी हो गया आएगा। Are you getting it? ठीक है। Let's suppose if I talk regarding another company, let's suppose कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, आईसीआईसीआई बैंक, मैंने बैंक सेक्टर कुछ लिया नहीं, ठीक है। If I say आईसीआईसीआई, ठीक है, and if I just go to the CAGR, yeah, 16, 23, 20, good, it's good one, it's good sign that मतलब ये नंबर से बढ़ रहे हैं ना, मतलब कंपनी एक्चुअली ग्रो कर रही है, ठीक है। नाउ वंस अगेन यू कैन सी हो, 1 ईयर का 93%, मतलब इफ आई जस्ट चेक 1 ईयर प्रीवियस का प्राइस इसका, तो उसका हाफ होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सपोज इफ आई जस्ट गो टू द ग्राफ, आई विल जस्ट मेक इट फॉर 3 इयर्स, गेटिंग है, ठीक है। आज का प्राइस इसका 724 था ऑन 3 सितंबर। इफ आई जस्ट चेक इट फॉर प्रीवियस ईयर, जान सितंबर किधर है, या सो इट वाज अराउंड 346 एंड आज का है 721, मतलब नियर अबाउट डबल हो गया। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। सो दैट्स व्हाई हियर यू आर गेटिंग दैट सीएजीआर ऑफ 93%। ये जाता किधर है? मेरे सॉल्यूशंस ग्राफ पे क्लिक किया तो जाता है कि क्या? ठीक है, लेट इट बी, आई विल रिफ्रेश इट। अबे वन सेकंड, आई विल रिफ्रेश। तो सीएजीआर मैटर करता है मुझे, या हियर आ गया, कितने जाता पता नहीं, ठीक है। सो या यू कैन सी, मतलब यस 1 ईयर में लिटरली डबल किया है पैसे उसने,
Getting it? ठीक है. So if you are taking any this particular stock now, then check for CAG also. Guys, try to understand fundamental analysis means what? ये जो सब रेशियो बता रहा हूँ सबको मिला के बाद में डिसीजन लेना है. Getting it? ठीक है. ऐसा नहीं एक को देख के अरे इतना चल डाल पैसा, ऐसा नहीं करना है. ठीक है. You have to मतलब we have to just give weightage to each and every ratio. सबको देखना है अपने को. ठीक है. वो ग्राफ वगैरह जितने भी बोला ना सब एनालिसिस करने बाद में डिसाइड करना है कि ये स्टॉक में एंट्री लेना है कि नहीं लेना है. ठीक है. इट्स नॉट कि जस्ट ओनली वन पैरामीटर विल डिसाइड. नो, one parameter may go wrong. Are you getting it? So that's why do not go with just only one parameter. You have to just analyze all the parameters which I am teaching to you. ठीक है. So जो भी पैरामीटर मैं बता रहा हूँ सब चेक करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है कि इसमें एंट्री मारो कि नहीं. Getting it? ठीक है. So this is for the CAGR. Okay. Now anything else you want to check? Any other company? सर टाटा स्टील देखो ना एक बार. चल ठीक है. टाटा से कि उसका 5 साल का ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे है, बट CAGR बहुत अच्छा है शायद. CAGR अच्छा रहेगा तो उस कंपनी में डाल सकते हैं. या इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स गुड. अरे लास्ट 1 ईयर में तो 240% है. देखते चेक करते पक्का है क्या, डबल से भी ज्यादा किया. अरे हाँ, लिटरली ग्राफ से ही समझ में आता है. अभी उसका वैल्यू इज 1400 ना. इफ आई जस्ट गो 1 ईयर बैक, या रियली मतलब 400 था उसका, उसने 1200 मतलब ये टाटा स्टील था. मतलब पैसा अपन गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर जस्ट टेकिंग मतलब अपना रिटर्न अपन अज्यूम करें 17% ओनली. इधर तो उसने बहुत ज्यादा दे दिए. हाउ यू गेटिंग इट? टाइटल से मतलब जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो फेक नहीं है. इट्स नॉट कि जस्ट मतलब ऐसा ओवर हमले और लाइकवाइज. नो, हवा में कुछ नहीं है, सब रियल है. गेटिंग? ठीक है. हाँ, बट यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट वाइजली. मतलब यू हैव टू जस्ट डू योर ओन एनालिसिस एंड देन यू हैव टू इन्वेस्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. गेटिंग इट? ठीक है. तो लास्ट ईयर में मतलब लास्ट 1 ईयर में इसने तो पैसा ट्रिपल कर दिया टाटा स्टील ने. तो सीरियसली मजबूत चालू है, मतलब जोरों से. मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ तो मतलब ज्यादा ही चलता रहेगा. गेटिंग इट? ठीक है. सर सो इसका दिस इज 5 इयर्स का देखो ना एक बार. मैक्स देखो इसका, ये टाटा स्टील का ही ग्राफ मैक्स मैक्स देखेंगे तो ग्राफ. अच्छा मैक्स ग्राफ देखो क्या होगा. हाँ, वो आपने बोला था ना डायगोनल रहेगा तो अच्छा यस रहता है. ये यस, वो भी थोड़ा ऊपर इम्पोर्टेंट. नीचे है ये. ठीक है, बट वो डायगोनली जा रहा है ना. मतलब वैसे दो टर्मिनल मैंने मीट कर रहा है. मतलब इसका एक्चुअली परफॉर्मेंस इधर तक गंदा था, अब इधर 20 ऑनवर्ड से एक्चुअली बढ़ रहा है. बट फिलहाल इफ आई जस्ट स्टिक टू द फंडामेंटल ना, फिलहाल तो मैं इसको अवॉइड करूंगा. मतलब इसमें ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा. मतलब ये सेक्टर अभी जस्ट 2020 से बूम में है, बट उसके पहले बहुत खराब था. Are you getting it? So I will not take a risk in this one फिलहाल तो. मतलब just on the fundamental analysis I will avoid this stock. Though it has given good return in the past 1 year, but उसके पहले देखना, उसके पहले तो डेंजर ही है. So that's why I say मतलब consistency is important. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कंसिस्टेंसी नहीं है वो स्टॉक को मत ले. दैट्स व्हाई सी मतलब डायगोनली अप जाना चाहिए. इफ इट इज गोइंग डायगोनली अप मींस व्हाट? इट्स कंसिस्टेंट प्लेयर. ठीक है, ठीक है. सो फिलहाल टाटा स्टील इज गिविंग गुड, दैट इज फाइन. बट इफ आई जस्ट इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म में फिलहाल तो नहीं सोचेगा. Are you getting it? How we have to decide? Because that must मतलब fit to your mind. मतलब मैं कैसे decide करूँ इसमें करना है कि नहीं करना है. Because if I'm teaching the things that is fine, but how to use it and how to apply it and how to take a decision, that is important. That you must understand. मैंने recording चालू किया है ना? खुशी ने रिमाइंड नहीं किया. खुशी तुझे absent मार्क करूंगा मैं. You do not remind me. Okay. ठीक है. So that is what the CAGR I told. So one more मतलब 3 ratios we have covered. पहला EPS देखा, earning then P and then CAGR. ठीक है. Now the next important ratios are ROCE and ROE. ठीक है. Because if you just see this particular thing, उसमें वो भी ratios रहते हैं. You may get it on money control also. ये ROE return on equity and ROCE भी रहता है. RO इसको बोलते हैं ROE return on equity. ठीक है. And we are having one more which is called ROCE as well. जो आई थिंक यहाँ पे नहीं है. सो आई हैव टू गो ऑन मनी कंट्रोल. Now two more ratios we will see, ROC and ROCE. ठीक है. ROE and ROCE. Sorry. Let's suppose if I take NP or else. Guys, don't expect from me कि मतलब I will just teach you all each and everything which is available on the website. But जो important thing है that I'm telling you, that I'm just sharing with you. मतलब जो important ratio जो देखना ही है. ठीक है. बस या ओके. अब इधर ROE है क्या? इधर भी नहीं दिखा. but I will get ROC and all. कहाँ पे अवेलेबल? ठीक है, लेट इट बी. उसके पहले आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज दैट ROC एंड ROE. ROC दैट इज इंपॉर्टेंट वन. ठीक है. सो लेट्स सी. सो टू मोर रेशियोस. तो फर्स्ट पे इन CAGR. ये इंपॉर्टेंट है क्यों? बिकॉज एनुअल रिटर्न कितना दे रहा है वो चाहिए मुझे ऑन एन एवरेज. ठीक है. वो देखना है तब जाके मतलब तेरा वो ड्रीम कंप्लीट होगा 17% का 20% का.
So depending on you have to choose a company. ठीक है. Then now next ratio, let's see, is what. First I will talk regarding ROE, and then I will talk regarding ROC, and then I will tell you what is the difference in them, and then which one to refer when. ठीक है. So ROE means what? Return on equity. Return on equity. Return on equity का मीनिंग क्या है? Return on equity, try to understand. देख, as I told, मतलब कंपनी को अगर किसी को भी मतलब पैसा रेज करने का दो तरीके, पैसा रेज करने का दो. गाइस आई एम वंस अगेन आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. अभी ये दो तरीके, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, बट फिलहाल तो उतने डिटेल में नहीं जाएंगे. जितना रिक्वायर्ड है, जितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, उतना मैं बता रहा हूँ. ठीक है. नाउ पैसा रेज करने के दो तरीके कौन से थे रे? फॉर एनी कंपनी टू रेज द मनी देयर आर टू वेज. व्हिच आर दे? सर एक तो पब्लिक में जो स्टॉक मार्केट, और एक स्टॉक मार्केट बोले तो उसको इक्विटी बोलते हैं. हाँ, बड़े बड़े इन्वेस्टर रहेंगे जो. एंड देन That's डेट, मतलब बैंक से कर्जा लेने का. ठीक है. Yes. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी ये क्या था, आरओई क्या रहता है. ठीक है. आरओई मींस व्हाट? इफ आई जस्ट टेल यू द फॉर्मूला, लेट्स सपोज, एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं, बट ठीक है चल, आई विल टेल यू. इट्स जस्ट लाइक नेट इनकम. ठीक है. व्हेनेवर आई से नेट इनकम मींस व्हाट इज अ पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी. मतलब जितने भी शेयर्स मतलब उसने बेचा है, मतलब जितने भी शेयर्स वो मार्केट में अवेलेबल है, और उधर से जितना भी पैसा उठा है. ठीक है. सो आरओई मींस रिटर्न ऑन इक्विटी. अभी इक्विटी मतलब क्या? जो बाजार से उसने, मतलब पब्लिक से जो पैसा उठा है. अभी गेटिंग, मतलब जिसने भी शेयर खरीदे उसने, मतलब शेयर खरीदा मतलब क्या, उसने पैसा डाला है ना उस कंपनी में. गेटिंग. ठीक है. सो व्हेनेवर से द इक्विटी मींस व्हाट? जो शेयर मार्केट से पैसा वो कंपनी ने जो भी उठाया है. Are you getting it? ठीक है. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी मींस व्हाट? अभी जो लोगों से उसने शेयर्स, मतलब जो भी शेयर के थ्रू जो भी पैसा लिए है, और जो भी मार्केट से पैसे हो जाए, ठीक है, उसके ऊपर वो कितना इनकम कर रहा है. Are you getting it? That's why this ratio is important. So return on equity से जो भी मार्केट से मेरे पैसा उठा है, उसके ऊपर मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है. Are you, उसके ऊपर वो कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है. Are you getting it? That is important because this is very important for any company to, मतलब अगर मार्केट से पैसा उठा रही है, बट उसको पैसे को उसको यूटिलाइज करने नहीं आ रहा, मतलब उसको डबल ट्रिपल करने को नहीं आ रहा, और इंक्रीज करने को नहीं आ रहा, तो वो कंपनी काम की नहीं है. Are you getting it? ठीक है. हाँ, if that ROE is मतलब अच्छा खासा, मतलब अच्छा नंबर है, मतलब गुड नंबर है, देन यस, मतलब कंपनी को अच्छा कर रही है, जो भी पैसा उठा रही है उसको मतलब बढ़ा रही है. Are you getting it? ठीक है. So ROE means what? Is a net income divided by the shares, shareholder equity. मतलब जो भी मार्केट से पैसा उठाए, एंड इधर जो भी उसने मतलब प्रॉफिट किया. ठीक है. सो नॉर्मली ये वाला नंबर ज्यादा होना चाहिए, ये वाला नंबर कम होना चाहिए. कम नहीं, मतलब ये वाला नंबर इससे ज्यादा ही होना चाहिए, न्यूमरेटर. Are you getting it? ठीक है. एंड इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दिस वन, मतलब कंपनी का जो भी बिजनेस मॉडल है वो अच्छा है, मतलब एटलीस्ट जो भी पैसा ले रही है मार्केट से, उससे थोड़ा वो इंक्रीज कर रही है. ठीक है. ठीक है. सो व्हेनेवर यू आर सीइंग फॉर दिस ROE, इट शुड बी ग्रेटर. मतलब जो भी आप मतलब कंपनीज का देखोगे तो ROE शुड बी ग्रेटर वन. ठीक है. ROE जितना ज्यादा, मतलब कंपनी का वो बिजनेस पैटर्न उतना अच्छा है. Are you getting it? जो मार्केट से पैसा उठा रहे उससे वो ज्यादा पैसा कमा रहे उसके ऊपर. Are you getting it? ठीक है. So that is what the ROE. And we are having one more which is called the ROC. Try to understand. अभी ROC means what? Is a return on capital employed. Is a return on capital employed. अभी इसका मीनिंग क्या होता है? Try to understand. Whenever it is equity ना, it just consider only this one. It just consider only this one. कंपनी ने इक्विटी के थ्रू कितना पैसा रोज किया. Try to understand what is the difference in this one. ठीक है. इट जस्ट कंसीडर ओनली इक्विटी, मतलब इट जस्ट कंसीडर ओनली दिस इक्विटी वाला, इधर से कितना पैसा है इसको वो पकड़ता नहीं. अगर कंपनी लोन लिया रहेगा ना तो वो इसमें आता नहीं है. राइट. दैट्स व्हाई जस्ट, मतलब दैट्स व्हाई वी हैव टू सी बोथ द रेशियोस. ऐसा नहीं कि एक को देख के डिसीजन लेने का, वी हैव टू सी बोथ द रेशियोस. व्हाई आई एम टेलिंग यू. ठीक है. व्हाई? बिकॉज़ इफ आई सी द रिटर्न ऑन इक्विटी मींस व्हाट? जो मार्केट से पैसा उठाए कंपनी, उसके ऊपर कितना रिटर्न वो ही आएगा. ठीक है. हाँ, अगर गलती से अगर कंपनी ने कर्जा भी लिया रहेगा, आई यू गेट इट, बट वो इधर दिखेगा नहीं, तो अपन फंस सकते हैं. समझो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. Are you getting it? ठीक है. Because do not just go on a ROE. Because कैसे होता है, let's suppose ROE का नंबर अच्छा आ रहा है, मतलब let's suppose 50% आ गया, मतलब 50 आ रहा है. So 50 का मीनिंग क्या होगा? मतलब let's suppose वो मार्केट से अगर 1000 रुपए उठा रही है, ठीक है, so it is just making 1500. Try to understand इसका मीनिंग क्या होता है. Means if I say ROE 50 means what? ROE अगर 50, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब कब 50 आएगा, इट्स जस्ट लाइक कि मतलब जो भी प्रॉफिट है, मतलब जितना भी मैंने पैसा उठाया, ठीक है, उसमें वो 50% ऐड कर रहा था. मैंने 1000 रुपए उठाया तो उसके ऊपर 500 रुपए ऐड करके तो 1500 उसका प्रॉफिट हो रहा है. अभी गारंटी है, तब जाके मेरा मैं बोलेगा कि ROE मेरा 50% है. समझ में आ रहा है क्या? गेटिंग इट. ठीक है. सो नाउ अभी होता क्या है ROE में, मतलब वी जस्ट टेक दैट, मतलब शेयर होल्डर से कितना पैसा उठाया है. गेटिंग इट. मार्केट से पैसा कितना उठाया. ठीक है. इसमें वो डेब्ट कंसीडर नहीं होता. एंड अगर कंपनी ने कर्जा भी लिया रहेगा, ठीक है, एंड उसकी वजह से मतलब बिकॉज प्रॉफिट इज ऑल अबाउट व्हाट, जितना पैसा लगा है उसमें ना, मतलब इक्विटी से जो भी इक्विटी के थ्रू जो भी रेज किया है, एज वेल एज अगर कर्जा भी ले रहेगा वो भी इसमें एक्चुअल मतलब वो प्रॉफिट में इंक्लूड रहेगा. मतलब प्रॉफिट क्यों होगा, मतलब इधर से भी पैसा वो भी तो लगा रहेगा. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. सो दैट्स व्हाई डू नॉट जस्ट कंसीडर ओनली ROE, यू हैव टू कंसीडर ROCE एज वेल.
कब कौन सा रेशियो प्रेफर करना, आई विल टेल यू, डोंट वरी। गेटिंग इट, ठीक है। सो आरओई मींस व्हाट, इट जस्ट टेक्स ओनली दिस इक्विटी, इक्विटी के थ्रू कितना पैसा रेज किया, एंड प्रॉफिट ये पूरा रहेगा। सो दैट प्रॉफिट में भी बिकॉज ऑफ द डेब्ट आल्सो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मतलब इसको ही मतलब डू नॉट जस्ट कंसीडर ओनली दिस पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है। वी हैव टू कंसीडर आरओसी आल्सो, बिकॉज़ आरओसी क्या रहता है ना, आरओसी इज व्हाट, इट इज जस्ट ईबिट। अब ईबिट मतलब क्या है, इज अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। मतलब अभी ये पैट था, पैट मतलब सब क्या बोलते हैं, सब एक्सपेंडिचर, सब टैक्स वगैरह सब डिडक्ट करके जितना पैसा बचा वो टैक्स, मतलब वो पैट बोलते हैं, ठीक है। एंड ईबिट मतलब क्या, कितना कंपनी ने प्रॉफिट किया, कितना पैसा कमाया उसके ऊपर प्रॉफिट कितना किया, एंड इसमें वो एक्सपेंसेस उसने डिडक्ट नहीं किए, मतलब कुछ इंटरेस्ट देना रहेगा, कुछ डेट क्लियर करने का, वो सब इंक्लूडेड नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ईबिट, अर्निंग बिफोर दैट टैक्स, गेटिंग इट, ठीक है। सो ये वाला पैट अलग और ये वाला चीज अलग है, ठीक है। हाँ, बट अभी डिविजन में क्या आता है, इस मतलब डिवाइजन में क्या आता है, जस्ट लाइक टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, total capital employed, ठीक है। So whenever it's like total capital employed means what, it will consider your equity as well as debt, समझो, it will consider that both equity as well as debt, now दोनों इंक्लूड होंगे, are you getting it, ठीक है। So now this is the ROC means what, now this is what, now once again this is the profit which is made by the company, ठीक है। हाँ, but this is the profit before tax, is a before tax, is a before income tax, earning before IT or profit before tax, you may say whatever is, मतलब one and the same thing, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट करके भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बहुत सारे टर्म है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, गेटिंग इट, ठीक है। सो आरओसी मींस व्हाट, मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, मतलब विदाउट डिडक्टिंग एनीथिंग, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय कितना पैसा लगा था। व्हेनेवर इज द आरओसी कैपिटल एम्प्लॉयड, अब इसमें पूरा पैसा आएगा, जितना भी पैसा कंपनी ने उठाया, वेदर इट इज फ्रॉम इक्विटी, वेदर इट इज फ्रॉम डेट, वेदर इट इज फ्रॉम एनी अदर सोर्स, सब पैसा इधर आएगा, आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी नाउ दैट इक्विटी प्लस डेट, मतलब जितना भी पैसा कंपनी ने उठाया किधर से भी बाय एनी सोर्स, वो सब पैसा इधर आएगा, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। एंड वो दैट विल गिव यू द आरओसी, ठीक है। वंस अगेन आरओसी भी अच्छा ही होना चाहिए, बिकॉज़ दिस व्हाट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी ने जिधर से भी पैसा उठाया उसके ऊपर कितना रिटर्न बना है, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। सो वंस अगेन दिस नंबर शुड बी आल्सो द गुड वन, ठीक है। अभी कौन सा किधर देखना है, जस्ट लाइक नाउ इफ योर कंपनी इज अ डेट फ्री, मतलब कंपनी के ऊपर कुछ कर्जा नहीं है, सो इन दैट केस यू हैव टू सी दैट आरओई, एंड इफ कंपनी ने कुछ कर्जा उठाया देन यू हैव टू सी दैट आरओसी, समझो कौन सा रेशियो किधर देखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वंस अगेन आरओई मींस रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर मार्केट से जितना पैसा उठाया उसके ऊपर कितना रिटर्न बनाया कंपनी ने, ठीक है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मींस व्हाट, कि शेयर मार्केट प्लस डेट, और मतलब बाय एनी सोर्स जो भी कंपनी ने पैसा उठाया, ठीक है, उसके ऊपर कितना रिटर्न दिया। अब ये दोनों रिटर्न में फर्क क्या, दिस व्हाट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये दो फर्क है इसमें, ठीक है। तो अभी कौन सा रेशियो किधर प्रीफर करने का, जस्ट लाइक दिस वन, आरओई मींस रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक व्हेन कंपनी इज अ डेट फ्री, कंपनी इज अ डेट फ्री, ठीक है, ठीक है। एंड दिस इज द आरओसी व्हिच यू हैव टू चेक व्हेन कंपनी हैज टेकन सम डेट, गेटिंग इट, ठीक है। सो दिस व्हाट टू रेशियोस आर। अब इसको कैसे देखना है, लेट्स सी, नाउ आई विल जस्ट टेक यू टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल, वन सेकंड टू दिस वन, ठीक है। Sir, या बोल, एनी डाउट। if the company doesn't have any debt, then ROC और ROC में फर्क ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि debt component जीरो हाँ, रहेगा। नॉर्मली नहीं रहते, नॉर्मली नहीं रहते, नॉर्मली नहीं रहना चाहिए, बट देयर विल बी द डिफरेंस, बिकॉज़ अपन उधर पैट कंसीडर करते हैं, उधर ये दूसरा कंसीडर करते हैं, तो दोनों सेम आने चाहिए, बट वो सेम नहीं आएंगे कभी, टेक्निकली सेम नहीं आएंगे, गेटिंग इट, मतलब एट जस्ट ग्लांस वी कैन सी मतलब दोनों सेम आने चाहिए, बट एक्चुअली सेम नहीं आएंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें ये ऊपर पैट है और इधर एबिट है, समझा, मतलब ये दोनों नंबर सेम नहीं, एक्चुअली अगर ये दोनों नंबर सेम रहते तो बोलता था कि मतलब आरओई एंड आरओसी विल बी इक्वल इफ कंपनी इज डेट फ्री, गेटिंग इट, समझा क्या। Yes, sir. ओके, ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं अभी, ठीक है। लेट्स सपोज आई विल टेक अपना आईटी सेक्टर फिलहाल तो बहुत फेवरेट है अपना फिलहाल, या ठीक है। नाउ हियर यू कैन गेट लाइक दिस वन, आरओसी एंड आरओई, हियर मींस इन स्क्रीनर में यू कैन जस्ट सी दिस पर्टिकुलर रेशियोज, ठीक है। सो हियर इट इज गेटिंग दैट आरओसी, मतलब इफ यू डू नॉट हैव दिस वन देन यू कैन जस्ट टाइप इट ओवर हियर, मतलब ऐड रेशियोज टू द टेबल, सो यहाँ पे टाइप करो, दुनिया भर के रेशियो आ जाएंगे, इसमें बहुत सारे रेशियोज है, इतना सब में नहीं कवर करना, जो इंपॉर्टेंट है उतना ही करने वाले, ठीक है। सो मतलब जस्ट टाइप करो, इतने सारे रेशियोज इसमें अवेलेबल, तो वो सब आ जाएंगे, ठीक है। सो आरओसी वगैरह जो भी चाहिए वो ले लो, ठीक। सो दिस इज व्हाट आई हैव जस्ट डिस्प्लेड ओवर हियर, ये कस्टमाइज्ड विंडो है मेरा, ठीक है। आरओसी एंड आरओई, ठीक। नाउ हियर यू कैन सी आरओई इज 39%, पहले देखने का डेब्ट है क्या, तो डेब्ट किधर है, डेब्ट किधर है, डेब्ट ये इधर इधर है। हाँ, अगर कंपनी के ऊपर डेब्ट है ना, तो फिर आरओसी देखने का, आरओई नहीं देखने का, समझ में आ रहा है क्या, आरओसी देखने का, आरओई नहीं देखने का,
ठीक है। तो हियर डेब्ट 7,000 करोड़ का डेब्ट है, ठीक है 7,000 करोड़ का। हाँ, नाउ वी हैव टू सी मतलब कर्जा ज्यादा है कि नहीं, वो भी एक इंपॉर्टेंट, दैट आल्सो आई विल बी कवरिंग, दैट इज अ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है, देन वी विल सी नेक्स्ट वन। ठीक है, पहले आरओसी एंड आरओई देखते हैं। ठीक है, अभी हियर नाउ दिस इज व्हाट आरओसी इज अ 48%। नाउ आरओसी इज अ 48% मींस इसका मीनिंग क्या समझा तेरे को? इसका मीनिंग क्या है? आरओसी इज 48%, मतलब लेट्स सपोज 50% है, मीनिंग क्या है इसका? सर वो सब पैसा मिला के उसको 50% तक ऊपर लेके जा वेरी रहा है। गुड, जिसने वो शेयर होल्डर से जो भी उठाया प्लस बैंक वगैरह जिससे भी उसने कर्जा लिया, वो उसको अगर मतलब मिला के जो पैसा डाला है उसने कंपनी के ग्रोथ में, उसमें वो 50% प्रॉफिट ला रहा है। ठीक है, मतलब एज आई टोल्ड, अगर उसने 1,000 रुपया उठाया रहेगा तो उसके ऊपर 1,500 रुपया बना रहा है, अगर उसने 1 लाख रुपया उठाया रहेगा तो उसके ऊपर 1.5 लाख रुपया बना रहा है। विच इज अ गुड साइन, विच इज अ गुड साइन, मतलब प्राइस मतलब जो भी इंक्रीज कर रहा है वो। ठीक है, दैट इज मतलब कंपनी, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी, तो कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं इधर से समझते हैं अपने को। Are you getting it? ठीक है, so here we can see कि ROC इसका 14% मतलब इट्स अ गुड साइन, मतलब या इज डूइंग गुड, मतलब ये कंपनी में डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। So whenever you're having a debt ना, तो normally you have to see ROC, and whenever you're having debt as a zero, then you have to check for ROE. ठीक है, if I talk regarding zero debt company तो फिर वो HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके ऊपर कर्जा ही नहीं है। एंड जीरो डेbt कंपनी बहुत मस्त रहती है, मतलब अच्छा रहता है, इज एक्चुअली गुड साइन, मस्त नहीं बोलेगा बट एक्चुअली गुड साइन। ठीक है, now here you can see debt for a HUL is a 0%, so in that case I will go for ROE. Try to understand. In this case, I will go for ROE. ठीक है, अभी ROE इसका मीनिंग क्या है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर नाउ इट इज जस्ट मेकिंग 29%। अभी क्या, ठीक है, मतलब जो भी उसने पैसा डाला, मतलब अगर 1 लाख डाला रहेगा, मतलब 1 लाख उठाया रहेगा मार्केट से, ठीक है, तो उसका 1,29%, मतलब 1,29,000 बना रहे हो। ठीक है, ठीक है, मतलब हाँ, मतलब दिस इज व्हाट यू कैन से डेट फ्री कंपनी है, सो इधर किसी को फॉर ROE, तो यहाँ इनका ROE 29% है। ठीक है, एंड TCS का ROE कितना था, अराउंड ROC कितना 50%, मतलब एक्चुअली TCS ज्यादा कमा रही है। TCS ज्यादा, बिकॉज वो IT सेक्टर में, FMCG सेक्टर में। गेटिंग इट? ठीक है, सो मतलब इफ आई वांट टू इन्वेस्ट मनी ना, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में नहीं डालेगा, मैं TCS में डालेगा एक्चुअल में, बस वो ज्यादा कमा रही है कंपनी। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज आल्सो मतलब वी कैन सी, अदरवाइज मतलब दिस इज नॉट ओनली द होल एंड सोल पैरामीटर गाइस, एज आई एम सेइंग। ठीक है, बिकॉज़ यू हैव टू जस्ट कंपेयर ऑल द पैरामीटर्स एंड उसके बाद यू हैव टू टेक अ डिसीजन, बट इफ यू टेक इट ऑन द बेसिस ऑफ ROE, देन दिस इज हाउ आई विल बी थिंकिंग। ठीक है, सो एवरी टाइम व्हाइल इन्वेस्टिंग इन कंपनी और व्हाइल कंपेयरिंग द कंपनीज, यू हैव टू जस्ट कंसीडर ऑल द पैरामीटर, जितने भी अपने से सब देख रहे हैं, एंड उसके बाद डिसाइड करना कि कौन से कंपनी में डाल। बिकॉज स्टॉक मार्केट में एज आई टोल्ड की कंपनी 4,000 6,000 से भी ज्यादा लिस्टेड है, हर एक कंपनी में पैसा नहीं डालना है, अपने को बेस्ट सिलेक्ट करना है, इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा एंड उसमें पैसा डालना है। ठीक है, एंड टू सिलेक्ट दैट बेस्ट, दिस ऑल पैरामीटर्स आर देयर व्हिच यू हैव टू कंपेयर। समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ लेट्स सपोज इफ आई जस्ट टेक हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या बोलते हैं उसका CAGR देखते हैं कितना है। TCS का मेरे को पता नहीं कितना है, याद नहीं है, या CAGR, सो 24 24 19 29, मतलब ठीक, मतलब कंसिस्टेंसी है उतने, मतलब 24% का CAGR दे रहा है, उसके ऊपर तो नहीं दे रही हो, मतलब नॉर्मली सी थी, मतलब कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो कंपनी का जो भी मॉडल, मतलब दे आर नॉट एक्चुअली, मतलब ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा, अदरवाइज कंपनी सैचुरेट भी हुई रहेगी, मतलब अभी जितना एक्सपांशन करा तो हो गया, अब उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, यू में से लाइक दैट। ठीक है, तो हियर कैन सी 24 24 90, बट ये कंपनी कंसिस्टेंस है। आर यू गेटिंग इट? कंपनी का मतलब इसमें पैसा डालना, मतलब देयर इज नो रिस्क एक्चुअली। व्हाई नो रिस्क? बिकॉज ये तो कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। ठीक है, कंपनी का कैपिटल भी अच्छा खासा है, एज आई टोल्ड कि मतलब 50,000 करोड़ तो होना ही चाहिए, बट इधर 6,50,000 है, मतलब अच्छा खासा है। आई गेटिंग इट? ठीक है, एंड मतलब हियर फ्रॉम द CAGR आई कैन जस्ट डिड्यूस कि मतलब कंसिस्टेंट है कंपनी, मतलब उतना तो परफॉर्मेंस उसने रखा है, उसमें कम ना हुआ है ना ज्यादा हुआ है। यार ये जाता किधर है रेशियो? यही तरह। ठीक है, सो दिस इज हाउ, मतलब दिस इज हाउ यू हैव टू जस्ट एनालाइज दिस पर्टिकुलर थिंग्स। गेटिंग इट? ठीक है, नाउ लेट्स सपोज इफ आई टेक एनी अदर कंपनी, आप कौन सा बोलो और कुछ भी बोलो जरा। लेट्स सपोज इफ आई टेक ऑटोमोबाइल, तो लेट्स सपोज टाटा मोटर्स फिलहाल तो लेता हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जाते हैं। या तो अभी ऑटोमोबाइल पे देखेंगे, माय गॉड इधर थोड़ा लफड़ा है, इधर कर्जा बहुत ज्यादा है, इधर ROC वगैरह भी कम है, मतलब टाटा मोटर्स फिलहाल तो गुड नहीं कर रही है, यू कैन सी, मतलब इधर बहुत कम है। ROE तो मतलब -22 में। ठीक है, एंड ROC मतलब कर्जा वगैरह सब पकड़ के तो भी 5% है, मतलब फिलहाल टाटा इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स फिलहाल तो इट्स नॉट डूइंग गुड, एंड दैट्स ऑल बिकॉज वो जगुआर एंड उसकी वजह से, लैंड रोवर एंड जगुआर की वजह से। ठीक है, बट फिलहाल मतलब यू कैन सी दिस टाटा मोटर, मतलब फिलहाल इफ आई जस्ट डू द फंडामेंटल एनालिसिस, फिलहाल मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आई गेट इट, फिलहाल टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट नहीं, हाँ, बट इफ आई चेक फॉर टाटा पावर और एनी अदर टाटा कंपनी, बिकॉज टाटा के जस्ट टाटा मोटर्स ही नहीं है, बहुत सारे हैं, तो टाटा पावर नहीं, चल टाटा कंज्यूमर लेता हूँ, विच इज वंस अगेन FMCG सेक्टर। या इसका भी ठीक, तो मतलब नहीं, इट्स नॉट गुड दैट, मतलब इट्स नॉट की लाइक की, मतलब हाँ प्रॉमिसिंग ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब फिलहाल इसको भी मैं अवॉइड करेगा।
गेटिंग इट? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक. ठीक है, लेट्स सपोज और कौन सा कंपनी लूं, लेट्स सपोज रिलायंस, दुनिया मतलब अपने इंडिया का टॉप का कंपनी, टॉप मतलब इन सेंस ऑफ मार्केट कैपिटल. इसका मार्केट कैपिटल दे 16,13,000 crore. इस सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल इसका ही है. ठीक है, तो इसके ऊपर वो कंपनी है ही नहीं. ठीक है, हाँ अभी इसका भी आरओसी मतलब ठीक है, मतलब रिलायंस इतना ज्यादा कमा के नहीं दे रहे. Are you getting it? आरओसी मतलब इतना ज्यादा वो रिटर्न बना नहीं रहे. ठीक है, अदरवाइज यू कैन चेक फॉर द सीएजीआर आल्सो. लेट्स सी. Now this is what ROCE means. What कंपनी इतना पैसा उठाए उसमें ऊपर कितना बना रही है. ठीक है, एंड इफ आई चेक फॉर शेयर प्राइस दैट इज द सीएजीआर, मतलब मेरा पैसा कितना बढ़ेगा एक्चुअल में. तो ये सीएजीआर 19, 37, 24, 16 मतलब या 20% के आसपास है. गेटिंग इट? लास्ट ईयर में थोड़ा सा कम हुआ है बट ठीक है 20% के आसपास है. गेटिंग इट? ठीक है, दिस इज व्हाट द सीएजीआर. सो दिस इज ऑल द पैरामीटर व्हिच यू हैव टू लुक एंड देन यू हैव टू डिसाइड इसमें डालना है कि नहीं. समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ बट इफ यू सी वो ईयर कि मतलब अपना जो 70% का टारगेट है रिलायंस भी कंप्लीट कर सकते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं. बट हाँ रिलायंस का ग्रोथ थोड़ा कम लग रहा है मेरे को. ठीक है, दो इज टॉप नंबर और मतलब टॉप कंपनी बट ग्रोथ कम है. बट हाँ इसमें रिस्क भी बहुत कम है फिर, क्योंकि बिकॉज ये मतलब क्या बोलते हैं इसका कैपिटल देख कितना, मतलब कितना बड़ा कंपनी है. आई गेट इट? ये मतलब कभी इसका दिवाला नहीं किया बैंकरप्ट होगा इतना तो पॉसिबल नहीं है. गेटिंग इट? ठीक है, सो दिस आर द ऑल पैरामीटर्स व्हिच यू हैव टू चेक फॉर. गेटिंग? सो वी हैव सीन three ratios. First of all, we have seen CAGR, then ROE and ROCE. Once again, when you have to check for ROE, when the company is a debt free, and अगर कंपनी और अच्छा खासा डेप्ट रहेगा तो फिर ROCE चेक करना है. Fine. And now I will take a last ratio, which is कौन सा लो? Debt to equity. चलो, another debt to equity. Now we will take one more and let's drop the ratios. Now the next one is a debt to equity ratio. Debt to equity. ठीक है, debt to equity ratio. ठीक है, as the name suggests, it is what debt to the equity ratio. ठीक है, now what do you think? ये नंबर क्या होना चाहिए, मतलब अच्छा मतलब ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? Debt to equity ratio. Just by कम looking होना at the चाहिए. formula. Sir, it should Sorry? कम होना चाहिए. वेरी गुड, कम ये कम होना चाहिए बिकॉज कंपनी के ऊपर कर्जा कम होना चाहिए और मतलब इक्विटी से जो भी पैसा लाया वो ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत कर्जा और इक्विटी से पैसा कम है तो फिर प्रॉब्लम है फिर. ठीक है, सो आइडियल मतलब नॉर्मली इफ यू आर गोइंग फॉर द कंपनी इफ यू हैव टू चूज ना देन इसका जो भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो लेस देन 1 होना चाहिए. नॉर्मली लेस देन 1 ही होना चाहिए. ठीक है, मैं तो बोलता हूं 0.5 के लेस होना चाहिए. मतलब इफ यू वांट टू जस्ट लाइक कंजर्वेटिव, मतलब मेरे को पैसा डुबाना ही नहीं है. ठीक है, तो मतलब इसका रेशियो जो भी रहेगा वो 0.5 से नीचे होना चाहिए. अगर ये 0.5 के ऊपर है तो वो कंपनी को फिलहाल तो मत दे. बट इट इज नॉट ट्रू विद ऑल द केसेस, मतलब ऑल द कंपनीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट मतलब एज आई टोल्ड मतलब व्हेन यू आर कंपेयरिंग दिस पर्टिकुलर रेशियो वगैरह ना पास में इतना डिटरमिन नहीं. इफ यू चेक फॉर बैंक्स तो डेब्ट टू इक्विटी हाई रहेगा बिकॉज वो खुद कर्जा देती है. ठीक है, तो मतलब ये अभी फंडा बैंक के लिए अप्लाई नहीं होगा. मतलब जो फाइनेंस सेक्टर से जो भी रिलेट करते हैं कंपनीज और बैंक्स और एनी अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड ऑल. ठीक है, सो उनके लिए मैटर नहीं करेगा. मतलब उनके लिए वी विल नॉट सी दैट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिकॉज उनके वजह से कर्जा उसका ज्यादा ही रहेगा बिकॉज उसने कर्जा दिया है. गेटिंग इट? ठीक है, सो बट यस नॉर्मली मतलब इफ यू आर जस्ट टेकिंग इट जस्ट जनरल आइडिया देन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मस्ट बी लेस देन 1. एंड इफ आई से मतलब इफ यू वांट टू बी अ कंजर्वेटिव देन मस्ट बी लेस देन 0.1. Are you getting it? Okay. So now if I just check once again on this one, so debt to equity ratio. So this is one parameter. Let's suppose for the Reliance Industries yes 0.41 तो चलेगा. 0.5 के नीचे ही चाहिए, उसके ऊपर रहेगा तो कंपनी को अवॉइड कर. ठीक है, let's suppose if I take अभी बैंक देखता हूँ मैं. ठीक है, बैंक के लिए मतलब ये ज्यादा ही रहेगा. तो बैंक के लिए मतलब ये डेब्ट इक्विटी वगैरह क्या बोलते हैं अप्लाई मत करो बिकॉज बैंक एक्चुअली मतलब वो कर्जा देने के लिए बैठी है तो उसका मतलब डेप वो ज्यादा ही रहेगा. आई यू गेटिंग इट? ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, सो डू नॉट अप्लाई दिस पर्टिकुलर रेशियो इन अ बैंकिंग सेक्टर बिकॉज हर एक सेक्टर में इसका मीनिंग थोड़ा अलग होता है. जस्ट ओनली बैंकिंग सेक्टर है बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में डिफरेंट रहेगा. दिस विल बी ग्रेटर बट रेस्ट ऑफ द सेक्टर के लिए कम ही रहना चाहिए. गेटिंग इट? ठीक है, सो डू नॉट अप्लाई दिस डेब्ट इक्विटी फॉर बैंकिंग सेक्टर और द फाइनेंस सेक्टर. Fine. Let's suppose if I take SBI. तो इसका तो 15 है, मतलब क्या खराब हो गया क्या? नहीं, ये तो सबसे मतलब इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट बैंक है. ठीक है, मतलब उल्टा इतना है कि मतलब उन्होंने ज्यादा कर्जा दिया है. Are you getting it? ठीक है, so do not मतलब try to understand how to apply the parameters. ऐसा नहीं कि तो 15 देगा इसमें डालने का नहीं. नो, बट देखना वो कौन सा है, वो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है. बैंकिंग सेक्टर में ऑब्वियसली मतलब वो तो ये रेशियो ज्यादा ही रहेगा. ठीक है, बट इफ इट बिलोंग्स टू एनी अदर लेट्स सपोज एनी अदर व्हाट इज द सेक्टर देन इन दैट केस यस डेब्ट टू इक्विटी मस्ट बी लेस देन 1.
ठीक है। नाउ लेट्स सपोज इफ आई टेक HUL, उसमें तो देखा वो तो 0 ही रहेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इसका डेब्ट टू इक्विटी 0 ही है, सबसे बेस्ट है। ठीक है। देन लेट्स सपोज इफ आई टेक एनी अदर, लेट्स सपोज TCS, ठीक है, उसका भी देख डेब्ट टू इक्विटी 0.09, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। कर्जा कम होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डेप पे देखते रहने का है ना 7,000 का करता है, नो इट्स अ डेप टू इक्विटी, मतलब इट्स अ रेशियो ऑफ दिस वन, ये डेप डिवाइड बाय दिस पर्टिकुलर नंबर, मार्केट कैपिटल कितना है, ठीक है, तब जाके मतलब ये फिगर बनेगा। ठीक है। सो डेप टू इक्विटी रेशियो फॉर कंपनी व्हिच आर सिलेक्टिंग इट शुड बी लेस देन 0.5। हाँ, अगर ये जितना कम रहेगा, जितना क्लोज टू 0 रहेगा, उतना सबसे उतना अच्छा रहेगा। गेटिंग इट? ठीक है। लेट्स सपोज इफ आई कंसीडर एनी अदर कंपनी, लेट्स सपोज कौन सा कंपनी, लेट्स सपोज डाबर, या 0.07, अच्छा कंपनी, मतलब just by looking at this particular ratio, not overall, because overall के लिए you have to just consider all the parameters. I'm just talking in respect to this, with respect to the debt to equity ratio. Getting it? ठीक है। So while considering, मतलब while setting a stock, you have to consider all the parameters. उसको बोलते हैं fundamental analysis, मतलब क्या, सब parameter देख, उसके बाद analysis कर बाबा अच्छा है कि नहीं। Just do not stick to only one parameter. Just ROE देख के, otherwise ROC ना, सबको देख कर उसके बाद decide करके, मतलब ये अच्छा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे मुझे फट है तो कंपनीज बोलो आप लोग, शेयर मार्केट चालू किया कि नहीं अभी, मतलब बाय सेल करना अभी वो चालू करो आप लोग, बिकॉज मैंने ठीक ठाक पैरामीटर्स कवर किए, सो यू कैन जस्ट नाउ चूज अ स्टॉक एंड उसके ऊपर इन्वेस्ट करो मनी बाय पे। ठीक है। यस, टेल मी एनी अदर कंपनी इन व्हिच यू आर इंटरेस्टेड। सर अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी 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 जितना ऊपर है ना, फटाक से उतना नीचे भी जाएगा गाइस। उसके चंगुल में मतलब वो ऑपरेटर साले, मतलब क्या बोलते हैं, सेल्स एंड बाय वगैरह मैनेज कर रहे हैं फिलहाल, तो वो बहुत ऊपर भी जा सकता है, बहुत नीचे भी जा सकता है। ठीक है। डेट टू इक्विटी ज्यादा है, अदानी ट्रांसमिशन मत लो। सर एंटरप्राइजेस वाला देखो, वो So बहुत can you ज्यादा है। take this any pharmaceutical share? चलो फार्मास्यूटिकल देखते हैं। ठीक है। हाँ, एंटरप्राइजेस 0.93, 1 सेकंड, आई विल नॉट गो फॉर दिस वन, बिकॉज वो 0.5 के नीचे ही चाहिए मेरे को, अदरवाइज मिल जाएगा नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बोला, फार्मासी का सपोज मैं लेता The हूँ Laurus सिप्ला, Lab. सॉरी, अच्छा चल ठीक है, Laurus Lab. ठीक है, सिप्ला 0.10, यस वी कैन कंसीडर। ठीक है, मतलब जस्ट बाय लुकिंग एट दिस वन की ठीक है, कंपनी कर्जा कम है। ठीक है। लॉरेंस लैब 0.57, फिलहाल तो मैं अवॉइड करूंगा, बिकॉज मेरा अगर मतलब अभी मैंने बेंचमार्क माना कि 0.5 के ऊपर नहीं चाहिए डेब्ट टू इक्विटी। गेटिंग इट? ठीक है। सर सो लेकिन दिस इज उसका हाउ यू कैन जस्ट, सॉरी, लेकिन उसका आरओसी और आरओई बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। हाँ, आरओसी मतलब दैट्स व्हाई आई टोल्ड ना कि मतलब दिस इज नॉट ओनली कि मतलब जस्ट ओनली वन पैरामीटर के आपको मतलब डिसीजन लेना है। Getting it? Now this is just I'm talking regarding debt to equity only, but finally if you're taking the decision, you have to consider all the parameters, सब parameter लिखने का पेज पे, and बाद में डिसाइड करने का ये अच्छा है कि नहीं। ठीक है। Now right now I'm just talking regarding debt to equity. समझा क्या? हाँ Are you सर। getting it? ठीक है। बोलो और कौन सा कंपनी, हाँ, इफ यू वांट टू हैव दैट, Nostril मतलब कैसा कंपनी है? का नेम्स वगैरह कौन से, देन यू कैन जस्ट गो ऑन NSE का वेबसाइट। अगर आपको पता नहीं है कंपनीज वगैरह कौन से, तो फिर यू कैन जस्ट गो टू द NSE का वेबसाइट और BSE का वेबसाइट, एंड वहां पे दुनिया भर की कंपनी मिल जाएंगी, दुनिया भर की मतलब जो भी लिस्टेड है, ऑल द कंपनीज यू विल गेट। ठीक है। यू कैन जस्ट गो ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गो ऑन मार्केट डेटा, इक्विटी। ठीक है, यहाँ पे तो दुनिया भर की कंपनीज मिल जाएंगी। सर सैनोफी कैसा है? कौन सा सैनोफी। कौन सा सन? सैनोफी SANOFI सैनोफी लिमिटेड ऐसा भी एक है ना? जस्ट मिनट, बोल स्पेलिंग बोल उसका, SUSK SANO। हाँ सैनोफी इंडिया सैनोफी। भाई। ओके 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 ओके, जरा आवाज clear नहीं आ रहा। अच्छा, सैनोफी डेब्ट टू इक्विटी तो अच्छा है, बट यू हैव टू जस्ट कंसीडर ऑल, मतलब हाँ, बट ये कंपनी का कैपिटल देख 20,000 के नीचे है, मतलब इफ आई जस्ट टॉकिंग रिगार्डिंग द फंडामेंटल एनालिसिस ना, फिलहाल तो मैं इसको अवॉइड करेगा। ठीक है, बिकॉज मेरे को पैसा मेरे को बचाने का और उसको बढ़ाने का भाई। ठीक है, बस फिलहाल इफ आई जस्ट टेक इज 20 करोड़ के भी नीचे, नॉर्मली ऐसे कि मतलब 50 करोड़ होना चाहिए कंपनी। ठीक है, या इट में बी ग्रोइंग और समथिंग वो सब रहेगा वो, बट अभी तो फिर मतलब यू आर टेकिंग अ रिस्क इन दैट। ठीक है। हाँ, आरओसी इफ आई सेइंग दैट 31% है, डेब्ट टू इक्विटी भी अच्छा है, बट यस मार्केट कैपिटल, बिकॉज व्हेनेवर आई से मतलब एनालिसिस मींस व्हाट यू कंसीडर ऑल द पैरामीटर, देन उसको बाद डिसाइड करना कि इसमें डालना है कि नहीं पैसा, बिकॉज अपने को पैसा बढ़ाने का है, कुछ भी करके घटाने का नहीं है। ठीक है, वी आर जस्ट सीइंग द कंजर्वेटिव अप्रोच। हाँ, ये एक है कि जितना तो ज्यादा रिस्क लेगा उस पर ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, एंड रिटर्न के साथ साथ वो ज्यादा घाटा भी कर सकता है, बट फिलहाल वी आर जस्ट मिनिमाइजिंग द रिस्क, रिस्क मेरे को नहीं लेना है। सो दैट इज फंडामेंटली ऑल अबाउट व्हाट यू कैन से, मिनिमाइजिंग योर रिस्क, एंड उसके हिसाब से पैसा बढ़ाना है। पैसा ज्यादा बढ़ा नहीं तो भी चलेगा, बट बढ़ना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए अपने को। दैट इज व्हाट इज कंसर्न ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। हाँ, तुझे बहुत ज्यादा वगैरह बढ़ाने का तो फिर टेक्निकल एनालिसिस में घुसना पड़ेगा।
गेटिंग इट, बट उसमें रिस्क भी जितना उतना ही रहेगा फिर। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, नाउ द हाँ लास्ट ठीक पैरामीटर है चले भाई। डिस्कस और नॉट, और एक पैरामीटर 10-20 हो गया। हाँ सर कर दो। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग, ये भी बहुत चीज इंपॉर्टेंट रहता है। प्रमोटर होल्डिंग मतलब कंपनी जिसने स्टार्ट किया उनका मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है कि वो लोग बेच के निकल रहे हैं। ठीक है, सो नॉर्मली व्हाट आई से कि प्रमोटर होल्डिंग मस्ट बी greater than 50%, but this is not true for all the companies. Try to understand because it वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है मतलब कैसे होएगा ना, because if I just talk regarding L&T, now normally let's see, मतलब promoter holding is also important. Normally promoter holding should be greater than 50% होना चाहिए। मतलब प्रमोटर को खुद को भरोसा है कंपनी के होता है, मतलब दे आर जस्ट उन्होंने उधर पैसा रखा है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग मतलब क्या, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट किया उनका पैसा कितना है। ठीक है, सो प्रमोटर होल्डिंग 60% मींस व्हाट, आउट ऑफ 100% 60% प्रमोटर के पास ही है। मतलब अगर प्रमोटर को इसके ऊपर मतलब भरोसा है, भरोसा मींस व्हाट, इफ इट इज ग्रेटर देन 50% मींस प्रमोटर को भरोसा है वो कंपनी के ऊपर, दैट इज व्हाट इज सेज प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, मतलब प्रमोटर होल्डिंग जितना ज्यादा उतना अच्छा रहता है। ठीक है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट रिलायंस, इफ आई से प्रमोटर होल्डिंग 50%, यस इज गुड, मतलब 50% अंबानी के पास है और 50% लोगों में वगैरह पड़े। ठीक है, इफ आई टॉक रिगार्डिंग HUL, लेट्स गो TCS इज 72%, अरे सबसे बेस्ट है, मतलब अच्छा है। ठीक है, सो प्रमोटिंग होल्डिंग चाहता है मतलब क्या, जो भी ओनर है उसको भरोसा है कंपनी के ऊपर कि मतलब ये बहुत अच्छा करेगी, दैट्स व्हाई उसने पैसा रखा है, अदरवाइज कंपनी बेच के निकल जाता। ठीक है, नाउ दिस इज आल्सो व्हाट यू हैव टू चेक ओवर हियर, प्रमोटर होल्डिंग मैंने नीचे रहेगा इधर, किधर है वो, या प्रमोटर होल्डिंग्स। ठीक है, नाउ दिस प्रमोटर होल्डिंग शुड बी ना, मतलब नॉर्मली डिक्रीज नहीं होना चाहिए, अगर डिक्रीज हो रहा है ना तो फिर कुछ तो गफला है, मतलब प्रमोटर जो भी वो मतलब कंपनी बेच के निकल रहे हैं। ठीक है, हियर यू कैन सी फॉर द TCS प्रमोटर होल्डिंग एक्चुअली बड़ा है, मतलब इज गुड, मतलब प्रमोटर को खुद को भरोसा है कि मतलब कंपनी को अच्छा करने वाले वो और ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं। Are you getting it? This is what is the interpretation actually, but this is not true in all cases, because if I just check for L&T last uh, ठीक है, here you will see the promoter holding 0 है, मतलब अरे अभी ये कंपनी मतलब कंपनी का एक्चुअल एज सच ओनर ओनर नहीं है, अभी ये कंपनी का वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा डिफरेंट है। अभी इधर प्रमोटिंग ओनली 0 मतलब ये कंपनी फालतू है क्या ना, अरे ये तो बेस्ट है, आपने को पता है लास्ट टाइम ब्रो। ठीक है, सो डू नॉट अप्लाई द थिंग्स ऑन ऑल दी कंपनीज है, बिकॉज उसको देखना पड़ेगा उसका बिजनेस मॉडल क्या है एक्चुअली। एंड नाउ दिस इज नॉट दैट क्या बोलते हैं फैमिली ओन बिजनेस, मतलब अंबानी का कैसा फैमिली ओन बिजनेस है लाइकवाइज, बट ग्लासलैंड का फैमिली ओन नहीं, मतलब हाँ जिसने चालू किया उसका बेटा संभालेगा, उसका उसका बेटा संभालेगा, ऐसा कुछ नहीं। गेटिंग इट? ठीक है, सो दैट्स व्हाई हियर प्रमोटर होल्डिंग इज 0, बट इट डजंट मीन कि मतलब कंपनी बुरा है। ठीक है, हाँ बट फिलहाल तो मतलब लास्ट टाइम आई विल अवॉइड बिकॉज डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा है उसका, ROC भी 15% है, मतलब ठीक है, मतलब इतना ज्यादा नहीं कमा रहा है। एंड इफ आई चेक फॉर द CAGR, दिस हाउ यू हैव टू एनालाइज, इसको बोलते हैं एनालिसिस। या हाँ किधर है CAGR, अभी चाहता किधर है, शायद इधर। ठीक है, CAGR भी हाँ 1 ईयर में ठीक है, बट बाकी मतलब दिस इज व्हाट दैट्स व्हाई आई टेल यू, मतलब 10 इयर्स का आपको देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कैसा कर रही है कंपनी। फिलहाल 1 ईयर में अच्छा किया, बट लॉन्ग टर्म में देखेगा तो यार इतना क्या बोलते हैं ऐसा गुड फिगर नहीं है मेरे लिए तो। आई गेट इट? तो फिलहाल तो मैं L&T को अवॉइड करेगा। Are you getting it? ठीक है, so this is how you have to say, अच्छा let's suppose if I check for this maximum वाला ग्राफ, हाँ ये ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा है ठीक ठाक, मतलब इस डायगोनली गोइंग अप, तो ये एक पैरामीटर जो बोलेगा मतलब ठीक है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एनालिसिस, सबको लेने का, सब पैरामीटर को लेने का, बाद में देखेगा कितने पॉजिटिव आ रहे हैं कितने नेगेटिव आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू से, यू हैव टू जस्ट मेक अ माइंडसेट कि इसमें भी इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, इफ आई जस्ट टॉक रिगार्डिंग द शेयर प्राइस ठीक ठाक ग्रो रहा है, इस डायगोनली ग्रो रहा है तो मतलब ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, बट यू हैव टू चेक फॉर CAGR आल्सो, मतलब CAGR तो कितना रिटर्न दे रहा है, अब ये CAGR कम है ना यार, मतलब 10%, मतलब अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं होगा फिलहाल तो। गेटिंग इट? मतलब अपना टारगेट अभी फिलहाल तो कंप्लीट नहीं होगा तो फिर जाने दे। गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, सो टुडे वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स, फर्स्ट वी हैव सीन CAGR, then we have seen that ROE, then we have seen ROC, then we have seen debt to equity, and then we have seen promoter holding, बहुत सारा चीज दिख रहा है बना गाइस। एंड ये सब आपको करके सॉरी अप्लाई करके यू हैव टू जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मनी बाय, बिकॉज आपके पास अभी 1 करोड़ रुपए, आई थिंक 1 करोड़ ही है ना सबके पास, 1 Yes, sir. करोड़ इशू किया है ना Yes, sir. वर्चुअली। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड स्टार्ट ग्रोइंग दैट मनी। ठीक है, एक्चुअली दिस इज व्हाट द मतलब दैट व्हाट यू कैन से दैट इन्वेस्टमेंट यू टू एक्चुअली चेक फॉर अ लॉन्ग टर्म, बट फिलहाल अपने पास लॉन्ग टर्म है नहीं बिकॉज 2 महीने में कोर्स खत्म करना है, बट स्टिल मतलब वी विल चेक क्या हो रहा है। Getting it? Because fundamental analysis for a long term, guys, it is for investing for 5 years, 10 years like that. It's not for 2 months, 3 months. No.
2 मंथ 3 मंथ में बोल नहीं सकते अपन गारंटी, हाँ, बट इफ यू आर टॉकिंग रिगार्डिंग 5 years 10 years गारंटेड पैसा कमाएगा, ठीक है, एंड फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द लॉन्ग टर्म ओनली, नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एज गाइस आई हैव गिवन वन असाइनमेंट टू यू, टैक्सेशन, काम किया क्या उसके ऊपर? Yes, sir. Yeah, taxation क्या है? Just someone tell me, because you have to submit that as a report, हाँ, मतलब you have to just make a report of it and you have to submit on, we share that Google Drive, Google folder, Drive folder with you. On that you have to just submit it, ठीक है? So taxation बोलो कैसे? Dividend के ऊपर and क्या capital gain के ऊपर?